Namaskar, good morning, and welcome to Janta Express videos. This is a video after a very long time I am creating, and this was for a very specific purpose. ठीक है, which we would come subsequently we would come into the purpose of this video. But for the new members who have just joined our team, just wanted to explain a little about Janta Express. What is Janta Express? So Janta Express, to define it or to put it in to summarize it, Janta Express is an asymmetric organization which empowers micro, small, and medium-sized organizations to develop their own fundraising mechanism within their organization itself. So basically, by this we mean that we work with micro, small, and medium-sized organizations, and we help them or empower them develop their fundraising mechanism themselves within their organization, so they are not dependent on any other sort of funders, or they are not dependent on any other outside resources for raising funds. Okay. Now, when we say asymmetric, many people try to figure out what do we mean by Janta Express as an asymmetric organization. When we say asymmetric, put it very plainly and put it very simply. Asymmetric means Janta Express is a zero funded, zero registered organization. It's a group of consultants from across the country who work with micro, small, and medium sized organizations to help them develop their fundraising mechanism within the organization itself. Okay? And each of these consultants may have their own sort of relationship and have their own MOUs and own agreements with the organization they are working for. Which may be commercial and which may not be commercial also. A lot of work we do is non-commercial work, it is free work. Okay. So having the short introduction about Janta Express, you can definitely call me back, or you can sort of contact me or Marina, and we can discuss about the concept of Janta Express much more in detail. But this video is not about Janta Express, it's about a particular concept which I would like to introduce you to. And the concept I would like to introduce you to is called Bonsai NGOs. Okay. So from the past, if you see from the past 3-4 years that we have been actively working in Janta Express, and from the past 30 years of experience which I have had, and from the past number of hundreds of years of experience collectively as Janta Express consultants we have had, we have realized that there is a certain category of NGOs, or there are certain NGOs which remain sort of, you may say, the same size. They do good work, they are impactful. They do number of different types of work, but in a way they like bonsai. Bonsai plants, if you see the image on your right, or rather on your left, you see a bonsai plant. A bonsai plant is a small plant which grows in a small pot and bears fruit. Like, for example, what you're seeing here on your left hand side is a bonsai mango tree, where the tree is just in that sort of bucket. And the tree is maybe about 6 feet tall max, 4 feet tall max, and it's growing, and it's a sort of fruiting. Now, what we feel is that many organizations are in this type of bonsai type of what I would say rut, or bonsai type of a fix, where they are not able to expand. For whatever reasons they are not able to expand. So. Okay, I am recording. I'm just checking whether I am recording, because sometimes क्या होता है कि record नहीं. Okay, so I am recording. So I just wanted to check that I am recording. This is as usual homemade videos, very informal videos. So coming back to the bonsai concept. So many NGOs, they have been in existence from 10-15 years, but still they have not been able to expand. Okay, so there are two things. One is that if the organization itself doesn't want to expand, that is great. If the organization takes a particular stand that we will only serve this particular area, very good. But also at the end of the day, every NGO is an organization, and an organization which doesn't grow dies. Okay? Now many of you all would say that my budget was X, and now my budget is X plus 10 and 10% and 20%, and we are growing at the rate of 10%. Okay? So I want to tell these organizations that if you are growing at the rate of 10% year on year, ठीक है, आपका बजट जो है वो 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है साल ईयर ऑन ईयर, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप स्टैग्नेंट हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 10%. ठीक है.
Now, when we sort of discuss this issue and when we have spoken to people and we have spoken to NGOs, and through our experience, we have realized that many of these NGOs remain bonsai NGOs or remain small localized NGOs or remain what we call, which are very, I don't like the word, but CBOs, community based organizations, is because of their dependence on philanthropic funding. Okay. And philanthropic funding, if you see in the graph at the side, at the right hand side, sometimes you get funding for 5 years, you get funding for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, and then you don't get the funding. So there is constant budget में fluctuation होते रहते, ठीक है. The budget goes up to about 10 lakhs, 15 lakhs, 1 crore, and then again you don't have funding, your budget again comes drastically down by 50%, 60%, etc., etc., etc. And this continues. Now we spoke to a number of NGOs regarding this thing, NGO founders regarding this issue and this sort of phenomena. What we in our local language call it kabhi khushi kabhi gum. What we call it in a local language kabhi khushi kabhi gum. बिकॉज क्या होता है कि जब भी फंडिंग है तो ठीक है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आउटरीच कर रहे हैं, आप कम्युनिटी में हैं वगैरह वगैरह, पर जब भी प्रोग्राम नहीं है तो आपका कम्युनिटी ठंडा हो जाता है, आपका जो कार्यकर्ता है, आपका जो फील्ड वर्कर्स है, वो बिखर जाते हैं और वापस जब भी फंडिंग आ गया तो आपको ऑलमोस्ट 1 से वापस चालू करना पड़ता है या 0 से चालू करना पड़ता है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर 1. So again you have to grow the organization, you have to activate the community, etc., etc., etc. And it's not necessary that you get the same project, the exact same project, but you get a different project and you work that way. So as a result of which you become a bonsai NGO. Okay, bonsai plants are very good because bonsai plants are small plants which give you big fruit. But the fact of having a bonsai organization is very, very constructive. You cannot constrictive. You can't grow. ठीक है. अभी जैसा कि ये आम का झाड़ पे देख रहे हैं तो इसका ऊपर तो फ्रूट है, ठीक है, बट इफ यू कंपेयर इट टू बिग लार्ज साइज मैंगो ट्री, द नंबर ऑफ फ्रूट इज मच लेस, ठीक है. Although in this bonsai plant you can see that there are a fruit, but maximum there will be about 100 fruit here, maximum, not even 100 fruit, less than 100 fruit, ठीक है. While on a large tree you will have over 200 fruit, So that is the issue कि भाई if we don't grow we are going to die off, ठीक है. Okay. So we need to grow, we need to grow. Even if we don't want to grow, we need to grow. Every organization needs to grow to survive. Okay? And organizations who want to grow, definitely, they are stuck in this bonsai NGO sort of a concept where you get funding, you don't get funding. Some years you don't get funding, then the next year you start building the community again from scratch, maybe on a different project. पहले आपने कम्युनिटी में हेल्थ का ऊपर काम किया, उसका बाद में आपको हेल्थ का फंडिंग नहीं मिला तो उसका बाद आपने कम्युनिटी में एजुकेशन के ऊपर काम किया, तो जो भी पहला का काम था वो वापस 0 तक आ गया, तो वापस आप एजुकेशन में अभी चालू कर रहे काम वापस हो, मतलब 0 से ही आपको चालू करना है. तो ये बॉन्जाई, तो आप एक बॉन्जाई एनजीओ हो गया कि आप वही एरिया में भी काम कर रहे, 10 साल से 15 साल में वही एरिया में काम कर रहे हैं. एक्चुअली देयर इज नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन दैट एरिया इफ यू एक्चुअली सी इट from a long term type of view, or even if there is some sort of a change, it's very, very minimal change. You are getting frustrated, okay, because you are also earning, you are also dependent on this particular thing, ठीक है. तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं, एक मुख्य कारण यही है कि क्यों हम लोग का जो फिलैंथ्रोपिक फंडिंग आते हैं, यानी कि फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो आता है, CSR से जो आता है, वो कंटिन्यूस फंडिंग नहीं रहते, वो स्टेबल फंडिंग नहीं रहता, वो 1 साल आते, 2 साल आते, तीसरा साल नहीं आते, वो कभी खुशी कभी गम वाला फंडिंग है. And everybody thinks that this is part and parcel of the sector. I want to say that this is part and parcel of the sector, but this affects your growth. Okay? So we need to look beyond this thing and see how we can grow, how we can secure stable funding for large number of years. मैं जब भी बोल रहा हूँ कि stable funding, I am saying funding which is 5 years and above, कि 10 साल तक की funding आपको वही आ जाए, चाहे वो आधा रोटी क्यों नहीं हो, ठीक है, but it should come for you for continuously. You should have that funding, ठीक है. Then only it makes sense. Okay, okay. So having said that, let me move ahead. Having explained the concept of a bonsai NGO, let me move ahead. Sorry, ये अपना बीच में आ गया है. यहाँ पे we'll go to next slide. Okay. Now, what does Janta Express do to help organizations break open from this bonsai NGO concept? ठीक है. इसका पहला आप एक जरूर मेरे को एक बात बोलेंगे कि कौन सा जो संस्था है या जो भी बड़े संस्था है आज की तारीख में, आप सफीना हुसैन का संस्था देख लीजिए कि एडुकेट गर्ल्स, या आप मैजिक बस देखिए, या आप अरमान देखिए जो हेल्थ में काम कर रहा है, या आप कौन सा भी बड़ा संस्था क्राई देखिए वगैरह वगैरह, इसमें क्या
फ़र्क है। इन लोग भी एक बार ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था, बात सही है। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ क्राई, क्राई आल्सो यू स्ट्रगल, एंड क्राई इज एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट रिमेंबर विपिन भट्ट, ठीक है, ही वॉज अ प्रोफेशनल, वो पर्सर था, ही वॉज अ पर्सर ऑन व्हाट यू वुड से फ्लाइट अटेंडेंट और हेड फ्लाइट अटेंडेंट ऑन एयर इंडिया, ठीक है। So he already had a job, he could support himself, he had the contacts because he was in first class, ठीक है। He used to purchase art and he used to sell art, you know, he used to auction art out and he used to make money. So all the organizations who have actually risen from very small beginnings to where they are today, whether you take Safina Hussain has a very good strong background in the corporate sector. If you take Arman founder was Dr. Aparna Hegde, she herself being a doctor. So organizations who have led by professionals, ठीक है, it's a different story. They do get funding, they are able to break off from this sort of क्या बोलते हैं उसको, ये बॉन्जाई का बॉन्ड से वो टूट सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं, उसको ज़्यादा फंडिंग मिलते हैं. You know, organizations are founded by professionals. I am talking to organizations who are founded by community members, जो हम लोग उसको proximate leaders बोलते हैं. जो कम्युनिटी से उभर के जो लीडर आ गया है, जिसके पास मतलब एजुकेशन किया है, पर जिसका कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, इंजीनियर नहीं है वगैरह, उसका खुद का कुछ बिजनेस नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा वाला संस्था इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट फंड्स, ठीक है. एंड दे गेट इनटू दिस बॉन्जाई एनजीओ कॉन्सेप्ट. उन लोग वही एरिया में, वही क्षेत्र में, वही बजट का साथ काम करते रहते हैं. मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर उन लोग का जो बजट है वो 10% से ग्रो होता है. पर 10% से ग्रोथ इज नॉट अ ग्रोथ, बिकॉज 10%, अराउंड 10% इज इन्फ्लेशन इटसेल्फ, तो उसको ग्रोथ नहीं बोल सकते, ठीक है. So this is the second concept. Now coming to what Janta Express does, ठीक है. So Janta Express and under Janta Express there is something called Janta Swaraj Express. So Janta Swaraj Express works on a contribution model. Now what do we mean by a contribution model? We mean by a contribution model is that we use large infrastructure available in the market. ठीक है, we use large infrastructure available in the market to help NGOs serve certain communities. ठीक है, we use large infrastructure freely available in the market to help NGOs serve certain communities. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक AI द्वारा एक फोटोग्राफ बना दिया. दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट. There was an organization in Mumbai who sort of worked with differently able children, and in the slums of Bombay, ठीक है, they used to work with differently able children in the slums of Bombay. और बच्चे लोग को क्या रहता है कि सुबह में especially differently able children in the mornings they had to do a lot of exercise, मतलब उन लोग को फिजियोथेरेपी करना पड़ता था, ठीक है. और जगह नहीं था स्लम में, मुंबई का स्लम में जैसा आपको मालूम है जगह नहीं था, ठीक है. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ गेट फाइंड अ प्लेस. पब्लिक पार्क्स भी नहीं था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड अ स्पेस टू सॉर्ट ऑफ फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मेट्रो आ रहा था, मुंबई मेट्रो, द फेमस मुंबई मेट्रो, वहाँ पे मेट्रो आ रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि मेट्रो वाला को रिक्वेस्ट किया कि जब भी आपका ट्रेन चालू नहीं है, एट दैट टाइम ट्रेन टू स्टार्ट अ लिटिल लेटर, मे बी एट 7 o'clock और समथिंग, जो आपका जो सीढ़ी है, द स्टेयरकेस दैट यू हैव एंड द कॉरिडोर दैट यू हैव, कैन यू लोन अस दैट कॉरिडोर स्टेयरकेस, जो पब्लिक स्पेस है, फॉर आवर चिल्ड्रन टू कम एवरी मॉर्निंग एंड डू देयर फिजियोथेरेपी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उन लोग को परमिशन मिल गया ऑफकोर्स, ठीक है. मेट्रो का यानी कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना कॉस्ट का एनजीओ ने इस्तेमाल किया, ताकि वो अपने जो बेनिफिशरीज है उसको कुछ बेनिफिट दे सके, ठीक है. तो दिस अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अ रियल एग्जाम्पल which has been used in Mumbai, and this is what Janta Swaraj Express is all about. This is what the Janta Swaraj Express contribution program is all about, ठीक है. Now take this one step further. So what we do, so we work in number of thematic areas, ठीक है, and we work with corporates, ठीक है, who already have products and who are already masters in their products. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी एक रियल एग्जाम्पल आपको दे दूंगा. जैसा कि इंग्लिश, आजकल इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग इज अ लाइफ स्किल. इफ अ यंग पर्सन, एक युवा को इंग्लिश बोलना आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको अच्छा जॉब मिल सकता है, या जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भले ही हो 10वीं पास होने दो, ठीक है, उसको शायद वो प्रेफरेंस मिल जाएगा. यानी कि सपोज इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु नोज इंग्लिश,
ठीक है, एंड हु कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है, और रादर स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट अपना जान बचाने के लिए स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और वो कोई होटल में जाता है या कोई रेस्टोरेंट में जाता है या कोई काफ़े में जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, और वहाँ पे वो बोलते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, और वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको जॉब मिलना और आसान है। नॉट ओनली उसको जॉब मिलना आसान है, उसको आगे बढ़ना भी आसान है। एंड दिस इज बी थ्रू, ये सही रहेगा, आप मॉल में जाएंगे छोटा मोटा जॉब के लिए, या आप कोई होटल में जाएंगे, या ड्राइवर का जॉब करेंगे, या कोई भी जॉब करेंगे जो मतलब अपना जो युवा लोग करते हैं, especially the boys and girls who are not so educated, English is a very life skill. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इंग्लिश सिखाने के लिए हम लोग ने जो कॉर्पोरेट्स है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट्स, वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड कॉर्पोरेट्स लाइक BM इंग्लिश, लाइक इग्निस करियर्स एक्सेट्रा, ठीक है, इन लोग का सब टाई अप करते हैं। इन लोग ने ऑलरेडी अपना करिकुलम में, उन लोग का करिकुलम में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, उन लोग ने ऑलरेडी अपना टीचर्स को ट्रेन करने में इन्वेस्ट किया, उन लोग कॉर्पोरेट्स का साथ कर रहे हैं और कॉर्पोरेट्स का साथ काफ़ी उन लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, सो दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, ठीक है। दे डोंट नीड मनी फ्रॉम गोइंग एंड टीचिंग से स्लम चिल्ड्रन, और दे डोंट नीड मनी फ्रॉम से गोइंग एंड टीचिंग अफोर्डेबल स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, और म्यूनसिपल स्कूल चिल्ड्रन। तो इन लोग का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हैं मेट्रो का, मेट्रो रेल का, मेट्रो कॉर्पोरेशन का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके हम लोग सेम सर्विस we are giving to the NGOs who can then give that service to the beneficiaries, ठीक है। वापस हम लोग इंग्लिश का प्रोग्राम पे आ जाते हैं। हम लोग का दूसरा एक प्रोग्राम है इग्निस करियर्स का, जो इंग्लिश भी सिखाते हैं और लाइफ स्किल्स भी सिखाता है। दे आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे आर अ वेल रेप्यूटेड कंपनी, उन लोग दे डू इट ऑन अ कमर्शियल बेसिस ऑल्सो, सो वी आर ऑल्सो टाइड अप विद देम सो दैट दे can use their already existing infrastructure, knowledge, etc., capacity, skill, etc., to teach English to say affordable schools, ठीक है, affordable price, to teach English to affordable private schools. So that is something we are also doing, ठीक है। Okay, so what we do is that we use the skills, infrastructure, knowledge base of already existing corporates, and we share that infrastructure with the NGOs, ठीक है, ताकि NGOs can use this infrastructure to help their beneficiaries, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट वी डू। नाउ दैट्स लेयर नंबर 1। अभी ये प्रोग्राम को कैसा सस्टेनिंग करेगा, तो वापस हम लोग CSR का पास जाएंगे, वापस हम लोग फंडर का पास जाएंगे, तो वापस अपना कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन आ जाएगा, जहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को पैसा मिल जाएगा, 1 साल के लिए पैसा मिलेगा, 2 साल के लिए पैसा मिलेगा, उसके बाद वापस पैसा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस कॉर्पोरेट्स, ये कॉर्पोरेट्स के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन लोग को अपना टीचर को पैसा, मतलब उन लोग को अपना टीचर को जो सैलरी देना है उसका कुछ इशू नहीं है, उन लोग का बिजनेस चल रहा है, वहाँ से पैसा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। दे एट अ वेरी वेरी स्मॉल सम दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विस फॉर द NGO एंड फॉर द बेनिफिशियरी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग का जैसा कि हम लोग का इंग्लिश प्रोग्राम है स्कूल्स में, हम लोग मतलब स्कूल से जो पैसा लेते हैं हम लोग, ठीक है, वी टेक अ वेरी वेरी स्मॉल सम फ्रॉम अफोर्डेबल स्कूल्स, पर आपको यकीन नहीं आएगा वो इतना छोटा रकम है। जैसा कि हम लोग 25 रुपये से चालू करते हैं, 25 रुपीज़ ओनली पर स्टूडेंट, क्योंकि स्कूल से पैसा लेंगे तो स्कूल आपको मालूम है जो स्पेशली अफोर्डेबल स्कूल्स है या प्राइवेट स्कूल, आई मीन अफोर्डेबल या बजट स्कूल्स है, finally they will take the money from the student. So what we do is that we use the infrastructure constructed or developed by these corporates, and we share this infrastructure with the NGOs to benefit our beneficiaries at a very very low sum. इसमें क्या हो जाता है कि वो कॉर्पोरेट को ज़्यादा पैसा का ज़रूरत नहीं है, जो भी पैसा आता है दैट इज शेयर विद इन NGO and that is shared with जनता एक्सप्रेस, of course, for its running. जनता एक्सप्रेस also has to sustain itself, ठीक है। So this is the type of concept we are doing, the contribution model. This concept we call the contribution model, which comes under Janata Swaraj Express, ठीक है। Now I will take you through what are the various areas we are working with in this model, ठीक है। Okay, so our 4 major areas that we have, where we thematic areas जो हम बोलते हैं हमारे भाषा में thematic areas, एक तो हेल्थ है, ठीक है, यानी कि हेल्थ हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अरे यार स्वास्थ्य, ठीक है, एक तो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर लिटरेसी,
कंप्यूटर लिटरेसी में जैसा आपको मालूम है उन्होंने IIT मुंबई का साथ टाई अप किया है, ठीक है, एंड एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट एट 200 रुपीज़ पर कोर्स, चाहे आप C++ का कोर्स भी करें, ठीक है, C++ कोर्स इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, इट्स अ वेरी एडवांस कोर्स, C++ का भी कोर्स करें तो आपको 200 रुपया में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देयर इज हेल्थ, दैट इज स्वास्थ्य, कंप्यूटर लिटरेसी, एजुकेशन जो मैं बोला था, जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश, हम लोग बिजनेस इंग्लिश सिखाते हैं, हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं, एंड वी हैव लाइफ स्किल्स ऑल्सो, ठीक है, एंड वी हैव अ ट्रेनिंग सेंटर। तो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे वेरी लो कॉस्ट पे वी टेम्परली हायर होटल्स, ठीक है, वेयर वी कैन डू। हाउ डू वी वर्क इन द ट्रेनिंग सेंटर इज बेसिकली जैसा कि आपका एक NGO है, आपको कुछ ऑफ साइट करना है, यानी कि आपका कोई रिट्रीट करना है या कुछ ऑफ साइट करना है, ठीक है, तो आपका NGO में पकड़ लेना कि कुल मिला के 50 लोग हैं, ठीक है। अभी आप 50 लोग लेके कोई होटल का पास जाएगा तो शायद होटल आपको इतना अच्छा रेट नहीं देगा कि 50% फॉर अ ग्रुप इज़ नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। बट आप और दूसरा एक NGO मिलकर, ठीक है, थ्रू जनता एक्सप्रेस, इफ यू नो चूज अ होटल, देन डेफिनेटली द रेट विल बी मच लोअर देन व्हाट यू वुड बी पे, ठीक है। So this is one type of a scheme. We have other schemes also where we sort of book the hotel on our, मतलब जनता एक्सप्रेस books these hotels, ठीक है, and we book for many days, जैसा कि हम लोग साल में एक पूरा महीना के लिए बुक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को काफ़ी सस्ता में मिल जाते होटल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यही होटल वापस संस्था को ऑफर करते हैं कि दे कैन कम, दे कैन डू देयर ट्रेनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो वी हैव 4 मेजर सॉर्ट ऑफ एरियाज वेयर वी आर वर्किंग इन। एक तो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, दूसरा है कंप्यूटर लिटरेसी है, तीसरा है एजुकेशन है, और चौथा है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। एक मिनट में जरा पॉज, ओके। So this is the 4 areas that we help. Now the issue what we need to do is, as I was telling you earlier also, कि हम लोग का कभी खुशी कभी गम वाला जो चीज़ है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स का साथ, यानी कि कंट्रीब्यूशन मॉडल का साथ आप जुड़ जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, शायद आपका पूरा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप फिलैंथ्रोपिक मॉडल से या फंडर को छोड़ देना, CSR को छोड़ देना और आप सीधा कंट्रीब्यूशन मॉडल पे आ जाए, नहीं, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वो फंडिंग चालू रखो, फंडर के साथ बात करना, फंड रेजिंग चालू रखो, साथ ही साथ में थोड़ा आप कंट्रीब्यूशन मॉडल भी आपका सिस्टम में ऐड करो, ताकि आपको आपका जो बेसिक कॉस्ट है, आपका ऑफिस का जो कॉस्ट है, आपका बेसिक स्टाफ का जो कोर टीम का कॉस्ट है, वो सब निकल जाए, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज इंक्रीज दिस कंट्रीब्यूशन मॉडल इफ यू नीड, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, सो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। क्यों आज की तारीख में क्या होता है कि हम लोग को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वी गेट बिग प्रोजेक्ट्स, हम लोग को बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स में क्या मिलता है, ट्यूबलाइट चेंज करने के लिए पैसा नहीं है, इंटरनेट के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज नो NGO sorry, no funder wants to give money for these things. So although we are big projects, we don't have money for these very simple things. मैं पानी का ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। So we don't have money for these simple things, ठीक है, although we have money for big projects, और उसमें हम लोग कट जाते हैं, ठीक है, we cannot support our staff, ठीक है। So my thing is that don't change directly from philanthropy to contribution or social business model. आप philanthropy चालू रखो, थोड़ा से 10%, 20%, 25%, ठीक है, which is allowed also, ठीक है, 20-25% is allowed, ठीक है, by law, ठीक है। आप एक contribution model में जाओ ताकि आपको एक स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इनकम मिले और यू हैव ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। once you have a standard source of money, you will automatically, your organization will automatically grow, ठीक है। if you don't have a standard source or a stable source of money, आपको मतलब हर महीना कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो आपका ये रहेगा कभी खुशी कभी गम, आपका कभी ग्रोथ नहीं रहेगा। आपको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड मतलब स्टेबल सोर्स ऑफ पैसा है, स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग है, तो यू विल डेफिनेटली सी ग्रोथ, ठीक है, you will definitely see growth, and depending on the amount of money you are generating through your contribution or social business model, that will be the size of growth. But at least आपको हमेशा रेड में जाके आपको हमेशा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपको हमेशा क्या बोलते हैं लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको हमेशा अपना जो मेन फंडर्स है उससे बोरो नहीं करना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आई जस्ट टेक अ वाटर ब्रेक हियर। अभी so how much are we offering NGOs? So we are offering NGOs anywhere from 5 lakhs a year to 15 lakhs a
सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो 25 lakhs a year it should be, not 20 to 15 lakhs, it should be 20 to 30, 20 to 30 lakhs. So we are offering NGOs anything from 5 lakhs a year to 30 lakhs a year. ये यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, स्लाइड में मैं जरा दिखाता हूँ आपको, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 15 लाख नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 30 लाख आना चाहिए। So we are offering in a year anything from 5 lakhs to 30 lakhs, dependent on the size of the organization, dependent on the operation size वगैरह वगैरह। But for any of your organization, जो आपका जो 99% of your organization can easily earn at least 5 lakhs a year। जितना भी छोटा होने दो, चाहे आपका 2 साल भी नहीं हुआ है, चाहे आपका 6 महीना भी नहीं हुआ, आप 5 लाख तो आराम से आप कर सकते हैं साल में। So what we are saying is that organization can start with earning about 5 lakhs a year and they can go up to 30 lakhs a year and even more। पर फिर भी मैंने ये मतलब ये ऐसा कैपिंग के लिए मैंने ये किया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years आई हैव शोन यू दैट यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम 5 lakhs to 30 lakhs। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। वी आर सेइंग इज दैट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन मॉडल। जो हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन मॉडल कर रहे हैं। हम लोग उसको सोशल बिजनेस नहीं बोलते, बिकॉज एक तरीका बिजनेस नहीं है वो, इट्स अ कंट्रीब्यूशन मॉडल, बिकॉज देयर इज अ कॉर्पोरेट हु इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, देयर इज एन beneficiary who's cooperating, who's contributing something। normally beneficiary का contribution hardly 25% से कम रहता है, ठीक है, to the cost of the program, and there is an organization who's cooperating, मतलब NGO, मतलब आप लोग जो contribute करते हैं, तो हम लोग उसको contribution model करते हैं, social business model नहीं करते हैं। I will come back to the thematic areas। जैसा मैंने बोला, हम लोग का 4 thematic area है, 4 thematic area है। एक स्वास्थ्य है, हेल्थ है, दूसरा कंप्यूटर लिटरेसी है, तीसरा एजुकेशन है, और चौथा ट्रेनिंग सेंटर्स है। इसमें और हम लोग ऐड करना वाला है इन्वायरमेंट, हम लोग ऐड करना वाला है इकोलॉजी, हम लोग ऐड करना वाला है, और जैसे हम लोग आगे जाते हैं और भी ऐड करने वाला है। जैसा हमारा जो नया प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज अ बिग एवेन्यू फॉर अस, एंड वी आर गोइंग टू ऐड एम्प्लॉयमेंट टू द 4 प्रोग्राम्स इमीडिएटली, और उसका बाद में हम लोग इन्वायरमेंट भी ऐड करना है। तो इसका बारे में सोचो आप, इसका बारे में सोचो आप। माई ओनली रिक्वेस्ट इज डोंट बिकम इनटू अ बॉन्जाई एनजीओ। ठीक है, एज ऑफ नाउ मेनी ऑफ अस आर फंक्शनिंग एज बॉन्जाई एनजीओज। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू परसेंटेज से, ओनली 2 to 3% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु बिकम बिग इन इंडिया। ठीक है, रेस्ट सब बॉन्जाई एनजीओ का हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, इवन इफ यू से दैट आई डोंट वांट टू ग्रो, ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर यू, बिकॉज इफ यू डोंट ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन विल डाई। ठीक है, so think about this, and thank you for your time, and more than willing to sort of answer any questions if you have, or any doubts if you have, or if you want to get into any of these programs। Thank you once again, and Jai Hind from Janta Express। मैं अभी इसको बंद करूँगा, बंद कैसे करते हैं।